Assalamu alaikum, dear cadets. Dear cadets, today we will discuss about the theory, law, and principle. That previously in the previous lecture we discussed about the hypothesis. Now we will discuss that what is theory, what is law, what is principle. Dear cadets, when a hypothesis is given or repeated exposure to the experimentation and is not falsified, it increases biologists' confidence in hypotheses. Such well-supported hypotheses may be used as the basis for the formulating further hypotheses, new hypotheses, which are given proved, which are again proved by experimental results. The hypothesis that stand the regards this is the definition of the theory. The hypothesis that stand the test of time. It means often tested, and never rejected. The hypotheses are uh, tested for many times, for different times, but never rejected, are called theories. The hypothesis supported by the hypothesis that stand the test of time, are called theories. A theory is supported by a great deal of evidence. The biologists support their theories with a great deal of the evidence. They have a lot of evidences to prove their theory accurate. Dear cadets, now we have studied about the theory. That what is theory? Hypothesis that stand the test of time. It means often tested and never rejected. It's called theory. Productive, productive theory keeps on suggesting new theories, new hypotheses, and testing testing goes on. इस तरह पे टेस्टिंग चलती रहती है जो थ्योरी होती है एक अच्छी थ्योरी होती है वो मजीद हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करती है उसकी तरफ इशारा करती है many biologists take it as a challenge and exert greater efforts to disprove the theory. बहुत से जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो एक थ्योरी को डिस्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं. If a theory survives such doubtful approach and continues to be supported by experimental evidence, it becomes law or principle. Dear cadets, जब एक थ्योरी जो होती है उसको बार बार टेस्ट किया जाता है उसको गलत करने की कोशिश की जा रही होती है लेकिन वो फॉल्स नहीं होती थ्योरी वो पॉजिटिव वो करेक्ट हमेशा करेक्ट रहती है कभी रिजेक्ट नहीं होती तो उस वक़्त फिर जब हम बार-बार उस पे टेस्टिंग करते हैं थ्योरी पे, तो वो जो रिजेक्ट नहीं होती, तो उस वक़्त हम क्या कहते हैं कि वो थ्योरी नहीं रहती, वो एक लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। तो अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म अब लॉ क्या है? उसको हम डिफाइन करते हैं। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ द नेचर। साइंटिफिक लॉ क्या होता है? कोई भी लॉ है नेचर का वो नेचर का एक कांस्टेंट फैक्ट होता है एक हकीकत होती है मुसलसल चलने वाली हकीकत होती है इट इज एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी मतलब उसको एक थ्योरी होती है जिसको हम रद्द नहीं कर सकते जिसका हम इनकार नहीं कर सकते इररिफ्यूटेबल नाकाबिल इनकार एग्जांपल्स ऑफ द बायोलॉजिकल लॉज आर हार्डी वेनबर्ग लॉ ये एक साइंटिस्ट था उस बायोलॉजिस्ट था उसने एक लॉ नेचर के अंदर जो लिविंग थिंग्स के अंदर लॉ था उसको उसने बयान किया था तो ये उसके नाम से कहा जाता है कि हार्डी वेनबर्ग लॉ एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वो जो विरासत होती है उसको स्टडी किया था मेंडल ने तो कुछ असूल जो उसने डिस्कवर कर लिए थे तो उनको मेंडल के नाम से मंसूब किया गया तो दैट आर नोन एज मेंडल्स लॉ of inheritance. Dear cadets, now we will study that data organization and data analysis. This is also very necessary for biological problem solving and
Data organization and data analysis is important steps in biological method. Data can be defined as the information such as names, dates, values made from observation and experimentation. It is very important to organize the data. Now we will study the data organization. In order to formulate and then to test hypothesis, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथेसिस बनाने के लिए और फिर उसको टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट से कलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज डेटा। साइंटिस्ट पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, खास तरतीब देते हैं डेटा को। prior to the conducting an experiment, कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ साइंटिस्ट टू डिस्क्राइब डेटा कलेक्शन मेथड। फिर सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करने के जो तरीक़ाकार हैं, मेथड्स हैं, वो साइंटिस्ट पहले तरीक़ाकार वज़ा करता है, वो बनाता है, मखसूस तरीक़ाकार पहले सेट करता है कि मैंने किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करना है, फिर वो डेटा कलेक्ट करता है। इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट। जब एक अच्छा डेटा कलेक्ट करने का प्रोसीजर होगा, मेथड होगा या कोई टूल होगा, तो फिर जो डेटा में मिलेगा वो क्वालिटी डेटा होगा, अच्छा होगा। Data is organized in different formats like graphics, tables, uh, flow charts, maps and diagrams. Different शक्ल के अंदर हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Next, data analysis. Data analysis is necessary to prove or disprove a hypothesis by experimentation. It is done through the application of the statistical method, that is ratio and proportion. ये statistical methods हैं. When a relation between two numbers a, number A and number B is expressed in terms of the quotient, जब उसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में हम लेके आते हैं, ये a और b ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन की शक्ल में लिखा हुआ है। फिर कैरेट्स ये स्टैटिस्टिक के अपने रूल्स हैं, तरीक़ाकार हैं। इट इज कॉल्ड रेशियो ऑफ वन नंबर टू द अदर। जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ उसका रिलेशन शो करना होता है, तो फिर उसको हम क्वेश्चन की शक्ल में लिखते हैं, मतलब के दरमियान में बटा डिवीजन की जो सिंबल होता है उसको हम पुट कर देते हैं। तो इस तरह अब रेशो में भी एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग ए डिवीजन। जब यहाँ पे जो स्लैश हमने डाला था दो ए और बी के दरमियान, तो वो भी ये क्वेश्चन फॉर्म में था, लेकिन अब स्लैश की जगह पे हम डिवीजन मार्क्स भी दे सकते हैं और कॉलन मार्क भी दे सकते हैं। कॉलन मार्क्स, ये डिवीजन मार्क है और ये है कॉलन मार्क। कॉलन मार्क हमारे पास टू डॉट्स हैं, तो बिटवीन द टू नंबर, तो ये भी। तो फॉर एग्जांपल द रेशियो बिटवीन द 50 मलेरियल पेशेंट्स एंड 150 नॉर्मल पर्सन। अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि 50 मलेरिया के पेशेंट हैं, वी हैव द 50 पेशेंट्स ऑफ द मलेरिया एंड वी हैव द 150 नॉर्मल पीपल, नॉर्मल पर्सन्स। तो इनके दरमियान जब हम रेशियो को शो करना होगा, तो हम कहेंगे कि इनके दरमियान जो रेशियो है 1:3। 1% is patient of the malaria and other 3% are not, they are normal. Next है हमारे पास proportion. Proportion means to join two equal ratios by the sign of the equality. पहले हमने पढ़ा रेशो, दो नंबर के दरमियान हम तल्ला को ज़ाहिर करते हैं, वो रेशो कहलाता है। लेकिन अब दो रेशो, एक रेशो है फिर दूसरी रेशो है, वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, वो इक्वल होंगी, तो उनके दरमियान जब हम इक्वलिटी का बराबर का जो साइन है उसको शो करेंगे, तो वो हमारे पास उस वक्त हम उसे टर्म को क्या बोलेंगे, सारी वैल्यू को, कि ये प्रोपोर्शन है। उस मेथड को हम बोलेंगे प्रोपोर्शन। डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है नंबर ए, दूसरा नंबर बी, उनके दरमियान रेशो ए रेशो बी। अब दूसरे हमारे पास एक रेशो है सी रेशो डी। तो अब दो रेशोज हैं, वी हैव टू रेशोज ए बी एंड सी डी। अब हम इनके दरमियान जब इक्वल का साइन डाल देते हैं, इक्वालिटी बराबर का साइन डालते हैं, तो अब ये सारा ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, अब ये प्रोपोर्शन कहलाता है। इक्वल का साइन जब आता है तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन हो रहा है इनके दरमियान। A ratio B is equal to C ratio D is a proportion between two ratios, two numbers नहीं, two ratios.
This proportion may also be expressed as A रेशो बी, कॉलन का मार्क है, आप डबल कॉलन मार्क हम शो कर सकते हैं। इक्वल का जो साइन है उसकी जगह पे हम डबल कॉलन का जो मार्क है वो हम पुट कर सकते हैं। When three values in a proportion are known, अब ये प्रोपोर्शन है, इसके अंदर हमारे पास 4 वैल्यू होनी चाहिए। ए बी सी डी 4 वैल्यूज हैं, लेकिन इनमें से अगर हमें 3 मालूम है, ए बी और सी ये मालूम है हमें, तो डी जो अननोन है वो हमें मालूम नहीं है, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है कैसे। फॉर एग्जांपल, a biologist can calculate how many birds will get malaria when he allows infected mosquitoes to bite 100 healthy sparrows. In the previous experiment, he noted that when he allowed the mosquito to bite 20 sparrows, 14 out of them got malaria. क्रिकेटर्स, अब हमने ना यहाँ पे एक रूल, प्रोपोर्शन का रूल हम जब फॉलो करेंगे तो उसके बाद हमें जो पता नहीं है कि कितनी एक टर्म एक वैल्यू हमें पता नहीं है, एक्स है उसका हम पता। अब हम एग्जांपल समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्रिकेटर्स, एक बायोलॉजिस्ट है, तो उसने देखना है कि 100 टोटल स्पायरस हैं, 100 चिड़िया हैं, तो उसने एक इन्फेक्टेड मस्कीटो था जो कि मलेरिया फैलाने वाला था, तो उसको उसके जरिए उसने स्पैरो 100 चिड़ियों को बाइट करवाया, इन्फेक्ट करवाया। अब 100 में से हमने देखना है कि कितनी चिड़ियों को मलेरिया हुआ, कितनी चिड़िया, कितनी स्पैरोस इन्फेक्ट हुई हैं। तो लेकिन ये एक रेशो आ गई हमारे पास, एक रेशो, इसके अंदर हमारे पास है एक वैल्यू अननोन है कि कितनी चिड़िया इन्फेक्ट हुई हैं, ये अननोन है, एक्स है। आगे आगे है रेशो, हमारे पास दूसरी जो वैल्यू है वो है 100, 100 चिड़िया है, उनमें से कितनी हमने वो करनी है, ये एक रेशो आ गई हमारे पास। अब दूसरी रेशो ये है कि एक पहले एक्सपेरिमेंट हो चुका था, उसके अंदर उसने जो बायोलॉजिस्ट था उसने 20 चिड़ियों 20 पैरट्स को इन्फेक्ट करवाया था मलेरिया से, मलेरियल जो मॉस्किटो था, मच्छर था। तो 20 में से 14 जो थी, 14 चिड़िया उनको मलेरिया हो गया था। तो अब ये दूसरी रेशो है 14:20, ये 2 रेशो हो गई। अब हम इसको प्रोपोर्शन के रूल के मुताबिक सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रेशो है हमारे पास 14:20, मतलब कि 14 आउट ऑफ 20। सेकंड रेशो है हमारे पास एक्स रेशो 100, मतलब हाउ मेनी आउट ऑफ 100। तो जब हम when we will follow the rule of proportion, it becomes 14:20 proportion x ratio 100. Cricketers, according to the rule of proportion, mathematical rule, we can multiply the uh, divided value to the opposite value, to the other side of the equal sign. And now here it is written, जहाँ पे लिखा हुआ है कि x over 100 is equal to 14 over 20। अब ये प्रोपोर्शन का रूल हमने यहाँ पे लागू किया है। ये जो प्रोपोर्शन का साइन था ना, 4 डॉट्स थे, तो उसको हमने बराबर में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम ऐसे कर सकते हैं कि x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 20 के साथ, अपोजिट जो टर्म है उसके साथ, और 14 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 के साथ। इन द नेक्स्ट स्टेप x और 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, x इज मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 14। अब हम x को हमने कैलकुलेट करना है, तो इसको हम अलग रख देंगे एक साइड पे, इक्वल की एक साइड पे, और 20 को हम ले जाएंगे दूसरी साइड पे। x इज इक्वल टू 100 over 20 into 14। ठीक है। नेक्स्ट, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 70। तो 70 100 में से 70 जो थी, अब देखिए ना, हम इस जो 70 है, x इज इक्वल टू 70, तो 70 को हमने पुट करना है x की जगह पे, जहाँ पे x लिखा हुआ होता रेशो के अंदर, वहां पे 70 डालेंगे।
तो यहाँ पे सेकंड रेशो को हम देखते हैं तो x इज रेशो 100 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अब हम x की जगह 70 डाल देंगे। इसका मतलब है 100 में से 70 जो चिड़िया हैं उनको मलेरिया होगा। It means 70 out of 100 sparrows get malaria. Dear cadets, it's enough for today. Inshallah, we will discuss our next chapter because today our second chapter is ended. Okay. Allah Hafiz. Stay blessed.